and on we'll go. लोग अपना एक्चुअल मीन मेथड पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कोरिलेशन के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोरिलेशन विद एक्चुअल मीन मेथड। मतलब आज हम लोग अपना न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे किसके साथ? एक्चुअल मीन मेथड के साथ। कौन सा मेथड हम आज फॉलो करेंगे? एक्चुअल मीन मेथड। आई होप कि सबसे पहले हमें स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअल मीन मेथड के फॉर्मूले से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल मीन मेथड के फॉर्मूले से। तो वी हैव द फॉर्मूला R is called for the correlation, the symbol of correlation. Here we have the formula called sigma small x small y upon under root sigma x square into sigma y square. Clear? So here you got the question, calculate Karl Pearson coefficient of correlation by actual mean method, in which we have question also. This is capital X and this is capital Y. This is capital X and this is capital Y. Now first of all we have to prepare a table. So let we begin with our table also. So here first column is for our x, second column is for our small x, third column is for our x small x square, next column we have for capital Y, next column we have for small y, next column we have for small y square, and the next column we have for x and y. So my dear students, we are going to start to calculate this question by actual mean method. This is really very simple question, very simple method. You just have to see it once and hope you understand the entire concept. So first we have capital X. From our question we are copying capital X. What we copied? Capital X we are copying. Okay? 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30. Is there any problem that while we are obtaining x from the question? So according to our question we have small x. According to our formula we have small x, but according to our question we have capital X. So first of all we are going to convert our capital X into small x, right? So small x, the formula for small x is capital X minus x per bar. I write it here also. मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ आपको खुले में समझाने के लिए। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, स्मॉल x का फॉर्मूला है कैपिटल X में से x पे बार को माइनस करना है। x पर बार का मतलब होता है मीन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो इसका मतलब है मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे भी लिख दिया है, तो अब आपको शायद फॉर्मूला शो हो जाएगा। अभी हमारे हिसाब से हमें क्या चाहिए? x तो हमारे पास है, वी हैव टू फाइंड x पर बार ऑल्सो। हमें क्या फाइंड करना है? x पर बार फाइंड करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग x पर बार? द फॉर्मूला इज सिग्मा x अपॉन n। ऑल्सो सिग्मा x कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू द सिग्मा ऑफ दैट। अभी हमें सिग्मा निकालना है, तो वी आर राइटिंग सिग्मा x। डू इट फास्ट। कितना आएगा सिग्मा x? 47। व्हाट इज दैट? 147।
I'm going to put the value here 147 upon n. N means number of values. N means number of values. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In our question, 7 values we have. So we are writing 7. So when we divide 147 with 7, what we get? 147 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 21. तो क्या आ गया हमारा? 21 आ गया. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे? 21 हमारा x पर बार है. तो 12 में से 21 गए तो कितना बचेगा? फाइंडिंग x, we want what we have to do? We have to subtract 21 from 12. We get -9. Okay. Then 15 is we have to subtract 21 from 15. What we get? 6. Then 3. Then 0. Then 3, 6 and 9. Any problem till here? Now we have a second step called we have to find x square. What we have to find? X square. Square of 9 is 81. Square of 6 is 36. Square of 3 is 9, 0, 9, 36 and 81. Okay? Clear hai? Now let us go to copy our value y from our question. So we have 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18. This is the value of y which we copied from our question. So here also we have to find y, small y, and what is the formula for small y? The same, the formula we are putting. What is that? It is small y equals to capital Y minus y pe bar. Okay. So first of all we have to find x y pe bar. So we have to do total also. Sigma y ka. The total is 84. So now we have to divide 84 by 7. So हम क्या करेंगे? 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो इस y स्क्वायर निकल आएगा ना, मतलब y पे बार निकल आएगा. तो वी आर डूइंग व्हाट? 84 डिवाइड बाय 7 वी गेट, क्या आंसर आएगा? 7 को डिवाइड कीजिए 84 से, 12. Now we have to find small y. The formula for calculating small y is that. So we have to subtract 6. We have to subtract 12 from 6. What we get? -6. 12 from 8 we get -4. Then -2. Then 0. Then 2. Then 4 and then 6. Any problem till here? No? Okay. Let's move on towards next. That is called we have to find y square. 6 square 36. 4 का square 16. 2 का square 4, 0, 4, 16 and 36. Right? Now we have to find small x and small y. According to our formula, here we have a formula x, y. So we have to find x, y. So what is that x? X is 9. And what is that y? Y is 6. Right? It's clear hai na? So now 9 6 जा 54. फिर यहाँ पे 6 4 जा 24. 3 2 जा 6. 0 3 2 जा 6. 6 4 जा 24 and 9 6 जा 54. The most important thing that we are going to do is total. अब हमें क्या करना है? सबका टोटल करना है. जब टोटल होगा मतलब सिग्मा निकालेंगे तभी तो हम अपनी वैल्यूज में पुट करेंगे फॉर्मूले में. तो यू हैव टू डू द टोटल ऑफ इट. डू इट फास्ट. आपको मेरे संग संग करते जाना है ना? आप अपनी कॉपी में कीजिए. सिग्मा वाई स्क्वायर 112. ओके. देन एक्स वाई को टोटल में निकालना है. सिग्मा एक्स वाई, अगर नीचे वाला पार्ट विजिबल नहीं है
तो स्टिल आई एम टेलिंग टू यू, मैं बोल रहा हूँ सिग्मा वाई स्क्वायर कितना आ रहा है 112 आ रहा है, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर देंगे, इट इज 168. व्हाट इज दैट? 168. This is 252, right? So let's move on to put the values in our formula. Let's move on to put our values in our formula. तो चलो चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ. सिग्मा एक्स वाई का टोटल आ रहा है 168. तो वी आर पुटिंग 168. Now we are opening our root. Sigma x square, according to our root, it is 252. So we are writing 252 into sigma y square. Y का स्क्वायर it is 112. सिग्मा y का स्क्वायर आ रहा है 112. Again 168 अंडर रूट में. Now you have to multiply. 252 का मल्टीप्लाई 112 से कीजिए. 28224. इन दोनों का मल्टीप्लाई कर आंसर आएगा 28224. लेकिन अभी हमें से रूट से बाहर निकालना है, तो आओ मैं आपको सिखा देता हूं कि रूट से बाहर कैसे निकालते हैं. टू 8224. तो वी हैव टू डू पेयरिंग. हमें रूट से बाहर निकालने के लिए पेयरिंग करनी पड़ती है, दो पेयर की. लास्ट से करना शुरू करते हैं. ये 2 अकेला बच गया, ठीक है. नाउ 1 1 जा 1, 1 + 1 2 हो गया, और 2 में से 1 गया 1. ओके, नाउ वी हैव टू कॉपी 82. हमने क्या उतार लिया? 82 कॉपी कर लिया, ठीक है. अब 182 आ गया हमारे पास. कितना आ गया बेटा? 182. नाउ अब हमें क्या चाहिए? अब हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करें? तो वी आर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई इट, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर विजिबल दिस, तो 26 का करके देखते हैं. किसका करके देखते हैं? 6 का. तो 6 6 जा 36 एंड 6 2 जा 12. 12 + 2 156. तो मैंने किससे करा? 6 से. यहाँ पे भी लिख दिया 6, और ये भी हो गया 6. यहाँ पे हम लिखा 156. अब ये हो गया, यहाँ पे कैरी लेंगे 12 में 6 गया 6, यहाँ हो गया 7 26. नाउ वी हैव कॉपी 24 ऑल्सो. 26 + 6 32. ठीक है. अब हमें इसमें कोई एक नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करके 2624 आ जाना चाहिए. तो लेट्स सी, ट्राई करके देखते हैं. इसको रब कर देता हूं यहां से. तो देखिए 32 है, इसमें हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8 का. अगर मैं 8 ले लूं और 8 का ही मल्टीप्लाई करूं, 8 8 जा 64. नाउ 8 2 जा 16, 16 + 6 22, एंड अगेन 8 3 जा 24 + 2 26. तो हमारा आ गया 2624, है ना. तो 2624 आ गया. जब हमने क्या लिया 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 168. कितना आ गया? 168. तो हम इसे वैल्यू पुट करते हैं. R = 168 तो ऊपर लिखा ही है, और इसकी वैल्यू रूट से बाहर निकल के भी क्या आ रही है? 168 आ रही है. इसे कट कर दोगे तो R कितना आ जाएगा? 1. अगर R 1 है पॉजिटिव का, तो क्या बोलेंगे? परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन. Perfectly positive correlation. I hope it is clear to you all.